Hello, good morning students. Welcome to Scala English School online program. Yesterday we had completed related to different triangles, that is acute angle, right angle and obtuse angle. Now we are going to start with the quadrilateral. What is mean by quadrilateral? Quadrilateral, this is a quadrilateral. So a closed figure or a polygon having four sides is called a quadri. Quadri means four sides. So quadrilateral means four sided polygon. Okay. Here we can see these are the segments, four segments. It is made up of four segments and four angles. Okay. So this is made up of four sides and four angles. So there are different types of quadrilateral that we are going to see. See, you are having in the compass box, you are having these two types of set square. Okay, this is one and this is second. So this is of 90, 30, 90, 60 degrees. This is 30 degrees, this is 90 degrees, this is 60 degrees. So 30, 90, 60 degrees one set square, and this is second set square having 45, 90, 45. ये याद रखना है, ये दो आपके पास सेट स्क्वायर होते हैं. दिस इज 45 डिग्रीज, 90 डिग्रीज, 45 डिग्रीज. दिस इज 30, 90, 60 डिग्रीज. तो ये दो टाइप के सेट स्क्वायर है. तो इसको यूज़ करके हम कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल देख सकते हैं कि if you place both of these, see if I take both of these 30, 60, 90, तो ये हमारा क्या बन जाता है, रेक्टेंगल बन जाता है. ओके, if you take these two both for 30, 60, 90 set squares, place them together, this become a rectangle. So what is the measure of its angles? Measure of angle कितना हुआ? This is 30, this is 60. Okay, this is 30, this is 60. 30 plus 60, 90. Okay, so this is 90 degrees, this is 90 degrees. Already we have no. This is 60, this is 30. So this 60 plus 30, 90. Then all angles are of 90 degrees. This is a rectangle where opposite sides are equal. ये side और ये side same है, ये side और ये side same है, and all the angles are of 90 degrees. तो ये हो गए properties of rectangle. जब rectangle हम फॉर्म किए हैं तो कितना हुआ, ये 90 डिग्री, ये 90, ये 90. So all angles are of 90 degrees. Opposite sides are equal. Okay. So these are the properties of rectangle. Next जो है वो square है. If you take this 45 degrees, 45 degrees, okay, and this is also 45, 90, 45, and if we join these two set squares, then we get a square. Can you see this square? Yes. तो अभी square के properties क्या है? So this is 45, this is 45, 45 plus 45, 90. This is 45, this is 45, 90. ये 90 है, ये 90 है. So in the square also all the four angles are of 40 degrees and all the sides are same. तो rectangle और इसमें क्या फ़र्क है? यहाँ पे only opposite sides are equal. यहाँ पे all four sides same. Angles are 90 degrees, angles are 90 degrees. This is also same. Okay, have you got this? तो अभी हम एक लेंगे ये सेट स्क्वायर ऐसा लेंगे. ओके, एंड अनदर सेट स्क्वायर द सेम 30, 60 सेट स्क्वायर इफ वी कीप दिस एज लाइक दिस. ओके, तो ये जो है ये पैरेललोग्राम हो गया. ये स्लैंट दिख रहा है आपको, दीज आर द स्लैंट. ओके, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, दिस इज 90 डिग्रीज, दिस इज 30 डिग्रीज, दिस इज 90 डिग्रीज, दिस इज 30 डिग्रीज. समझ में आ गया? यानी दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल इज 60 एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 60. सो बोथ आर, what is that? Both are same. So opposite angles of parallelogram are equal. तो ये प्रॉपर्टी हो गई. समझ में आ गया कैसे होता है? This is 30, this is 90, this is 30, this is 90. So both the angles are of equal measurement. This 60, this is 60. So these are both same. यानी this angle and this angle, these are opposite. ये और ये दोनों opposite है. ये चारों एंगल सेम नहीं है. Only opposite angles of parallelogram are same. दिस लेंथ एंड दिस लेंथ इज सेम, दिस लेंथ एंड दिस लेंथ. जैसे कि रेक्टेंगल में है
तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम. ओके, नेक्स्ट जो है वो हम ये सेट स्क्वायर से बनाएंगे. ये अगर ऐसे हमने 4 सेट स्क्वायर लिए, ओके, ऐसे हमने 4 सेट स्क्वायर लिए, यहाँ पे और यहाँ पे ऐसा ही नीचे भी लिया, ऐसा एक और ऐसा एक, मैं एक ड्रॉ ही कर देती हूँ. अभी मेरे पास 4 सेट स्क्वायर नहीं है तो मैं ये डायग्राम बनाती हूँ. ओके, हाँ, तो अभी ये 4 सेट स्क्वायर हमने लिए तो ये बन जाता है रोम्बस. जैसा स्क्वायर है वैसा ही रोम्बस है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, रोम्बस और स्क्वायर में फ़र्क क्या है, दीज साइड्स आर पैरेलल, ये पैरेलल होती है. ओके, स्लैंट होती है लाइंस. सो इसमें भी आप देख सकते हो, दिस इज 45, ये सब 45 वाले हैं. सो 45 + 45 90, 45 45 90, 45 45 90, 45 45. सो जैसे स्क्वायर में 90 डिग्रीज थे वैसे यहाँ पे भी all angles are of same length, that is same measurement, that is 90 degrees. all sides are of equal length. स्क्वायर जैसे ही रोम्बस की प्रॉपर्टी है और रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम की सेम प्रॉपर्टी है. ओके, सो दीज आर द इट इज यूजिंग, दिस इज यूजिंग 30 60 एंड दिस इज यूजिंग 45 45. सो अभी हम यहाँ पे क्वेश्चंस है वो देखेंगे कि क्या क्या है. सो फर्स्ट पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम में क्या है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है या इक्वल है. पैरेललोग्राम में हमारे ऑपोजिट साइड सेम है, इक्वल और इक्वल भी है. पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड यस. देन ऑल साइड्स आर इक्वल, नो, पैरेललोग्राम के ऑल साइड्स इक्वल नहीं है, सिर्फ ऑपोजिट है. ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, यस. देन उसके डायगोनल्स जो है, डायगोनल्स इक्वल. ओके, डायगोनल्स यानी क्या है, सो इफ दिस इज अ डायगोनल, ये एक डायगोनल है और ये एक डायगोनल होता है. यहाँ पे ये एक डायगोनल है और ये एक डायगोनल है. ओके, तो ये जो है डायगोनल जो है वो सेम लेंथ के है या नहीं है. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो दीज आर 2 डायगोनल्स, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम है कि नहीं. सो द डायगोनल्स आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर. ओके, दे आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर यानी दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये 90 डिग्रीज हो गए, सब दिख रहा है. सो यस, इट इज़ 90 डिग्री. अभी यहाँ पे हम देखेंगे ये और ये जो है, इसके बाद ये जो होता है, तो ये बीच वाला जो एंगल है वो 90 डिग्रीज है या नहीं है. ओके, तो ये हमें बोलना है. सो दिस इज पैरेललोग्राम, इट इज़ परपेंडिकुलर. अभी यही रेक्टेंगल के बारे में अगर हमने देखा तो रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, यस यस, ये सेम हो गया. ऑल साइड्स इक्वल, नो. ऑपोजिट एंगल्स सेम है, यस. डायगोनल्स जो है वो इक्वल है या परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों के भी, रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल नहीं है लेकिन परपेंडिकुलर है, यस. यहाँ पे नो है, दोनों भी 90 डिग्रीज के नहीं है पैरेललोग्राम में. लेकिन रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं लेकिन परपेंडिकुलर होते हैं. अभी नेक्स्ट स्क्वायर के देखेंगे. ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है क्या, यस है, पैरेलल है. इक्वल है क्या, यस. ऑल साइड्स इक्वल है क्या, यस. ऑपोजिट एंगल सेम है क्या, यस. डायगोनल्स जो है वो इक्वल है क्या, डायगोनल्स स्क्वायर के सेम होते हैं लेंथ में और परपेंडिकुलर भी होते हैं. नेक्स्ट जो है रोम्बस. रोम्बस में पैरेलल है, इक्वल है, ऑल साइड्स इक्वल, यस. ऑपोजिट एंगल्स सेम, यस. देन डायगोनल्स, उसके डायगोनल्स इक्वल नहीं है लेकिन परपेंडिकुलर है. ओके, नेक्स्ट जो है ट्रेपेजियम. सो व्हाट इज मीन बाय ट्रेपेजियम, सो ट्रेपेजियम मीन्स दिस 2 sides are parallel, these are 2 sides are parallel, these are not parallel. Okay, तो these 2 sides are, they are not equal but these 2 sides are same. ये 2 sides same होते हैं but they are not, only one pair of side is parallel but it is equal but not parallel. Okay, और ये parallel जो side है वो same length नहीं होते. Okay, तो ये है ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज. तो उसके भी डायगोनल अगर आपने देखे, सो दिस इज अ डायगोनल, दिस इज कॉल्ड डायगोनल. ये एक डायगोनल है, ये एक डायगोनल है. तो ये सेम लेंथ के है क्या, यस. और इसका 90 डिग्रीज नहीं है. ओके, सो दिस इज अबाउट द, तो इसमें हमें 5.7 है. ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल, यस, दैट इज ट्रू. अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ, यस, ट्रू. तो हमें आप वहाँ पे आपको लिखना है ट्रू है या फॉल्स है. ओके,
सो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अदर. येस, इट इज ट्रू, यानी 90 डिग्रीज होता है. ऑल द साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल इन. रोम्बस के सभी साइड्स इक्वल होते हैं. येस, स्क्वायर और रोम्बस के ऑल साइड्स आर इक्वल. ऑल द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन. नो, दैट इज फॉल्स. ओके, पैरेललोग्राम के सभी साइड्स नहीं, सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते. ऑपोजिट साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर पैरेलल. नहीं, एक ही साइड होती है. दिस इज ऑल्सो फॉल्स. ओनली वन ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्रेपेजियम इज पैरेलल. दोनों ऑपोजिट साइड्स नहीं होते पैरेलल. गिव रीजंस. अ स्क्वायर कैन बी थॉट एज अ स्पेशल रेक्टेंगल. वाई? आपको रीजन देना है. यानी स्क्वायर ये जो है, दिस इज थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल के ऑल द प्रॉपर्टीज आर ऑफ द स्क्वायर. रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या है? ऑपोजिट एंगल सेम, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्रीज जो स्क्वायर के हैं. ऑपोजिट साइड इक्वल स्क्वायर के होते हैं. ओके, उसके बाद जो है कि डायगोनल्स 90 डिग्रीज के होते हैं. येस, 90 डिग्रीज के होते हैं. सो दैट्स वाई एज द प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल आर सेम ऑफ द स्क्वायर, दिस इज द सेम. रेक्टेंगल कैन बी, तो इसके रीजन आपको लिखने हैं, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है. देन अ फिगर इज सेड टू बी रेग्युलर इफ इट्स साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड एंगल आर इन सेम मेजर. कैन यू आइडेंटिफाई द रेगुलर क्वाड्रिलेटरल? तो ऐसे कौन से क्वाड्रिलेटरल है जिसके एंगल भी सेम है और साइड्स भी सेम है? तो दीज आर रोम्बस एंड स्क्वायर. ओके, सो पॉलीगॉन. व्हाट इज मीन बाय पॉलीगॉन? सो फार यू स्टडीड पॉलीगॉन ऑफ 3 और 4 साइड्स. 3 साइड्स का पॉलीगॉन होता है, उसे ट्रायंगल बोलते हैं. 4 साइड्स का जो है वो क्वाड्रिलेटरल, जो हमने अभी देखा. अभी हम देखेंगे. सी, दिस इज अ 3 साइड्स ट्रायंगल. ट्राई मीन्स 3 साइड्स एंड दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल. नेक्स्ट जो है 4 साइड वाला, उसे बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल. सो क्वाड्रिलेटरल इज ऑफ 4 साइड्स. देन 5 साइड्स वाला है पेंटागन. ओके, पेंटागन जो है वो 5 साइड वाला होता है. 1 2 3 4 5 साइड से, इसीलिए पेंटागन बोलते हैं. देन है हेक्सागन. हेक्सागन मीन्स 6 साइड्स. ओके, कैन यू सी दिस? यस, हेक्सागन इज अ 6 साइड. 1 2 3 4 5 6 सेम लेंथ के हो जरूरी नहीं है, सिर्फ 6 साइड हो तो वो हेक्सागन है. ऐसे 7 साइड का है तो उसे बोलते हैं हेप्टागन. उसे बोलते हैं हेप्टागन. ओके, सो ये 7 साइड वाला आपको निकालना है. उसके बाद 8 साइड वाला होता है वो ऑक्टागन होता है. ऑक्टागन यानी 8 साइड. 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड वाला ऑक्टागन. तो ये लिस्ट है, वो आपको ड्रॉ करनी है घर पे, और उसे क्या बोलते हैं याद रखना है, ये एग्जाम में आ सकता है. ओके, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स दैट वी आर सीइंग. नाउ 5.8. Explain whether the following are polygon. If any one among them is not, say why. Is this a polygon? Polygon क्या होता है? It should be a closed figure. तो ये polygon नहीं है. This is, yes, it is a polygon because it has a segments जो है, ये line segments जो है वो straight होने चाहिए and intersect नहीं होनी चाहिए. But this is a open, that's why it is not a polygon. ये जो है ये लाइन सेगमेंट से बना है, लाइन सेगमेंट से बना है, इसीलिए इसे पॉलीगॉन बोलते हैं. दिस इज अ सर्कल. इट इज अ क्लोज कर्व बट इट इज नॉट मेड अप ऑफ एनी लाइन सेगमेंट. दैट वाई दिस इज नॉट अ पॉलीगॉन. अभी यहाँ पे ये 2 साइड्स है, लेकिन ये जो है ये कर्व है. दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलीगॉन बिकॉज देर इज अ 1 कर्व. सो इट वोंट बी अ पॉलीगॉन. ओके, नेक्स्ट जो है नेम ईच पॉलीगॉन. अभी ये 4 साइड वाला है, उसे क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं. 3 साइड ट्रायंगल, 5 साइड पेंटागन, 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड ऑक्टागन. ओके, मेक 2 more एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ दिस. ऐसे ही आपको और 2 फिगर निकालने हैं और उसका नाम देना है. तो आप हेप्टागन, हेक्सागन ये दे सकते हो. ड्रॉ रफ स्केच ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन कनेक्टिंग एनी 3 ऑफ इट्स वर्टाइसेस. अभी मैं दिखाती हूँ हेक्सागन कैसा होता है. ओके, हेक्सागन मीन्स ऑफ 6 साइड्स. 1 2 3 4 5 and 6. These are the 3 vertices. तो आपको उसके वर्टाइसेस को ज्वाइन करना है. तो दीज आर द वर्टेक्स पॉइंट्स. ओके, तो उसको इस तरीके से ज्वाइन करना है कि वो
यहाँ पे ये तो ऑलरेडी जॉइन है, तो ये एक हो गया, ये दो हो गए, ये तीन हो गए। तो उन्होंने पूछा है कि ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ रेगुलर हेक्सागन कनेक्टिंग एनी थ्री ऑफ इट्स वर्टाइसेस, ड्रॉ अ ट्रायंगल। उन्होंने बोला है कि हाँ ऐसे ड्रॉ करो कि जो ट्रायंगल बन सके। तो अगर मैंने यहाँ से यहाँ पे एक निकाला है, तो ये अभी ट्रायंगल कैसे बनेगा, यहाँ से यहाँ करना है, एक छोड़ के अगर मैंने बनाया तो ये होता है ट्रायंगल। ओके, तो ये हो गया ट्रायंगल। तो ये आपको सिर्फ बनाने के लिए बोला है। joining the exactly four of the vertices of the this is the connecting three sides and draw a triangle, identify the type of the triangle you have drawn। तो ये जो है ये ट्रायंगल को आपको टाइप ऑफ ट्रायंगल बताना है। सो व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस ट्रायंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ये ट्रायंगल जो है वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ओके, नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। अभी 8 साइड वाला करना है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, तो उन्होंने बोला है यूज द स्क्वायर पेपर इफ यू विश, ड्रॉ अ रेक्टेंगल बाय जॉइनिंग एग्जैक्टली 4 ऑफ इट्स वर्टाइसेस। उसमें से कौन से भी 4 लेने और उसका क्वाड्रिलेटरल बनाना है। तो एक छोड़ के देखो, यहाँ पे एक छोड़ा एक लिया, एक छोड़ा ये लिया, एक छोड़ा ये लिया, एक छोड़ा ये लिया। ओके, सो व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस, ये 2 वर्टाइसेस ऑफ द पॉली, ड्रॉ अ रेक्टेंगल एग्जैक्टली 4 साइड्स। हाँ, तो ये क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। ओके, सो दिस इज अ रेक्टेंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है 5th, डायगोनल्स इज अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस। डायगोनल यानी क्या है, इट इज अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस द 2 vertices of the polygon and is not of the not a side of the polygon। ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ पेंटागन। अभी पेंटागन यानी 5 साइड वाला, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका डायगोनल हम कैसे निकाल सकते हैं, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ पेंटागन एंड ड्रॉ इट्स डायगोनल्स। उसके डायगोनल यानी what is the definition of diagonal? The diagonal is a line segment that joins 2 vertex। 2 vertices ऐसे ज्वाइन करने, यानी इसका साइड का जो एडजेसेंट वर्टेक्स है उसको नहीं ज्वाइन करना है, एक छोड़ के दूसरा वाला। तो ये जो है ये हो गया, ये हो गया। ओके, ये 2 हो गए, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। उसके बाद ये होगा, ये होगा। ओके, ये भी हो गया। उसके बाद इसके साथ ये हो गया है, इसके साथ ये हो गया। ओके, सो कैन यू have you seen what are the diagonals? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2, ये 1 2 हो गए, 3 4 5 6 7 एंड 8 9 एंड 10। तो कितने डायगोनल्स हो गए, 10 डायगोनल्स हो गए। ओके, सो दिस इज द वे यू हैव टू ड्रॉ द स्केच। उन्होंने जो पूछा है उतना ही करना है आपको। उसके बाद है 3 डायमेंशनल शेप, दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर लेसन। 3 डायमेंशनल शेप, ये जो हम देख रहे हैं ये 2 डायमेंशनल होता है, यानी आपको सिर्फ सामने से नजर आता है। लेकिन 3 डायमेंशनल यानी उसको लेंथ, यानी इसमें क्या दिखाई देता है, लेंथ और ब्रेड्थ उतना ही दिखता है। यहाँ पे भी देखो लेंथ ब्रेड्थ, तो उसमें अभी एक विड्थ ऐड हो जाएगी। तो जैसे कि अभी ये जो है ये हमें कैसे, ऐसे अगर देखा तो ये सिर्फ सामने वाला दिखता है, लेकिन अगर ऐसा दिखाई दिया तो इसमें क्या है, ये लेंथ है, ब्रेड्थ है, और ये जो है ये विड्थ है, तो ये ऐड हो जाती है। सो दिस इज अ 3 डायमेंशनल फिगर। ओके, और अगर आपने सिर्फ एक पेपर लिया, अभी ये है, सी दिस इज, ये जो है ये है 2 डायमेंशनल। ओके, तो ये प्लेन है, ये 2 डायमेंशनल दिख रहा है, 1 फेस एंड 2 फेस। सो दिस इज अ 2 डायमेंशनल। लेकिन यहाँ पे कितने फेसेस है, दिस इज 1 एंड 2 एंड 3 फेसेस होते हैं, इसीलिए उसे 3 डायमेंशनल बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम 3 डायमेंशनल फिगर देखेंगे। द बॉल इज अ स्फीयर। अगर ये हमने सर्कल सिर्फ बैंगल ली तो ये 2 डायमेंशनल होती है, क्योंकि उसमें 2 ही सरफेस होते हैं। लेकिन अगर बॉल लिया तो बॉल क्या है, एक स्फीयर है जो कि 3 डायमेंशनल होता है। ओके, नाउ द आइसक्रीम कोन। आइसक्रीम कोन क्या है, आइसक्रीम कोन में हमें क्या दिख रहा है, ये जो है ये जो है ये ऐसा ट्रायंगल नहीं बना है, ये जो है ये एक हाफ सर्कल बनता है। तो ये जो है अंदर से हमें ये मिलता है। तो ये जो है लेंथ ब्रेड्थ और विड्थ दोनों भी आते हैं इसमें, क्योंकि ये जो है ये इसकी विड्थ है। ओके,
ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, लेकिन ये उसकी विड्थ है, ये देखो ये, ओके, ये है और ये उसकी विड्थ है। सो दिस इज ऑल्सो अ 3 डायमेंशनल फिगर। उसके बाद है टिन। ये कैन हमने देखा, तो कैन इसे बोलते हैं सिलेंडर, ये सिलेंडर शेप है, ओके, दिस इज अ कोन शेप। ये जो है ऐसा ऐसा और ये सर्कल, दिस इज अ कोन शेप। दिस इज अ स्फीयर शेप, ये सर्कल नहीं है, उसे बोलते हैं स्फीयर। तो ये शेप याद रखो, दिस इज अ स्फीयर शेप, दिस इज अ कोन शेप, दिस इज अ सिलेंडर। सिलेंडर यानी जो हम रेक्टेंगल निकालते हैं वही रेक्टेंगल, लेकिन उसको 2 सर्कल अगर आपने ज्वाइन किए तो दैट इज कॉल्ड अ सिलेंडर शेप। नेक्स्ट जो ये बॉक्स है, दिस इज कॉल्ड क्यूबॉइड, ओके। ये बॉक्स जो है वो क्यूबॉइड है। जैसे कि मैंने ये अगर ये बॉक्स आपने देखा, सो दिस इज अ क्यूबॉइड, क्योंकि 1 2 एंड 3 देयर आर 3 साइड्स, सो दिस इज अ क्यूबॉइड। तो रेक्टेंगल जो शेप होता है, ये एक रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल, इधर एक रेक्टेंगल, नीचे एक रेक्टेंगल, यहाँ पे एक स्क्वायर, यहाँ पे एक, तो ये जो है ये इससे रेक्टेंगल से बना है, दैट इज अ क्यूबॉइड, तो उसे बोलते हैं क्यूबॉइड। ये जो है ये स्क्वायर शेप है, तो उसे क्यूब बोलते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्यूब एंड क्यूबॉइड? यहाँ पे ये ऑल साइड्स सेम होते हैं, इसके ऑल साइड सेम होते क्यूब के, लेकिन क्यूबॉइड के क्या होता है, ये और ये सेम है, ऑपोजिट साइड सेम होते हैं सिर्फ। तो ये है क्यूब, ये है क्यूबॉइड, तो उसका डिफरेंस याद रखना है। देन दिस इज अ शेप ऑफ पिरामिड। पिरामिड यानी क्या होता है, ये जो है ऊपर से ऐसे शंकु होता है, ओके, नीचे एक ट्रायंगल है और ऊपर से 1 2 3 ये ट्रायंगल ज्वाइन हुए, तो दिस इज अ 3 डायमेंशनल फिगर, दैट इज कॉल्ड पिरामिड। तो ये जो शेप है वो सब याद रखने हैं, क्योंकि आपको शेप के साथ वो मैच करने आना चाहिए, ड्रॉ करने आना चाहिए, पहचान में आना चाहिए कि दिस इज स्फीयर, कोन, सिलेंडर, cuboid, cube and pyramid. Now let's think with the this, okay। तो ये अभी हमने हमने वर्टेक्स देखा कि दिस इज अ वर्टेक्स, जहाँ पे 2 रेज ज्वाइन होते हैं, दिस इज कॉल्ड अ वर्टेक्स, ओके। ये सब वर्टेक्स है हमारे, ये सब वर्टेक्स है, और वर्टाइसिस बोलते हैं प्लूरल में, वर्टाइसिस, ओके। तो ये जो है ये पूरा एक होता है फेस, उसे बोलते हैं फेस, ओके। और ये जो लाइन है उसे बोलते हैं एज, ओके। सी हियर एज 1 2 3 4 5 6 7, इसके पीछे 8 9 10, ओके। तो ये अभी हम काउंट करेंगे कितने, ओके, यहाँ पे ही देखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ओके। तो पहले हम क्या करेंगे, ये रेक्टेंगल के 4 साइड, ये रेक्टेंगल के 4 साइड, और ये 2 साइड के, ओके, यानी 4 + 4 8 9 10 11 12, तो कितने एजेस हो गए, 12। अभी वर्टेक्स कितने हैं, 1 2 3 4 सेम होंगे, 5 6 7 8, कितने वर्टेक्स है, 8 वर्टेक्स है, याद रखना है। वर्टेक्स यानी ये जॉइनिंग पॉइंट है, कॉमन पॉइंट, तो इसे वर्टेक्स बोलते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टेक्स हो गए, एजेस कितने हैं, 12 एजेस है। तो इसका, तो अभी ये है पिरामिड, ये है क्यूबॉइड। अभी ये जो पिरामिड है, पिरामिड की कितने हैं वो फेसेस, ये फेस 1, ये फेस है, ये एक फेस 1 2, इसके बाजू वाला 3, ये पीछे वाला 4 और नीचे वाला 5, तो कितने हैं, ये 5 फेसेस है, ओके, दीज आर 5 फेसेस। अभी एजेस कितने हैं, 1 2 3, पीछे वाले 5 6, सेम ऐसा ही शेप पीछे भी आएगा, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 और उधर का 9, यानी एजेस कितने होंगे, 9। अभी वर्टेक्स 1 2 3 4 5 6, 6 है, वर्टेक्स कितने हैं, 6, तो ये याद रखना है। फेसेस है 5, 9 एजेस है और वर्टेक्स जो है 6, तो ये काउंट करना आना चाहिए आपको। अभी ये पिरामिड है, तो पिरामिड और ये जो है प्रिज्म, सॉरी ये पिरामिड है, ये प्रिज्म है। प्रिज्म में सिर्फ फ़र्क क्या है, ये ट्रायंगुलर फेस है, सभी इसमें ट्रायंगल है, और ये जो है रेक्टेंगल, लेकिन इसमें क्या है, नीचे का जो है ये होता है ऐसा स्क्वायर होता है, ओके, दिस इज अ स्क्वायर। ये जो नेक्स्ट साइड होती है वो 4। तो अभी पिरामिड में फेसेस कितने हैं, 1 2 3 4 और नीचे वाला 5, तो फेसेस कितने हो गए, 5। उसके बाद एजेस 1 2 3 4 5 6 7, ओके, कितने एजेस है, 7, और वर्टेक्स 1 2 3 4 5, यानी ये 4 वर्टेक्स और ये 5,
यानी वर्टाइसिस कितने हो गए 5। तो इस तरीके से आपको ये अभी यहाँ पे फेसेस, ये है सिलेंडर शेप, इसमें कितने हैं 1, नीचे का 2 और ये पूरा मिला के 3, तो फेसेस कितने हो गए 3 फेसेस है। एज कितने हो गए, ये 2 ही एज है यहाँ पे, ओके 2 एजेस, क्योंकि ये एज 1, ये 2, 3, 4 एजेस है। और उसमें वर्टेक्स कहाँ है, वर्टेक्स नहीं है बिकॉज इट इज़ अ सर्क्यूलर इन शेप, सो नो वर्टेक्स। अभी यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे ये एक ही वर्टेक्स है, ओनली 1 वर्टेक्स, ओके क्योंकि ये जो है ये वर्टेक्स नहीं काउंट होता है, ये सर्कल है। और फेस कितने हो गए, ऊपर का एक और नीचे का एक मिला के 2 होते हैं, फेसेस कितने हो गए 2। तो इस तरीके से आपको ये, अभी ये स्फेयर में क्या है, एक ही फेस है, नो एजेस, ओनली 1 फेस इज देयर, एज नहीं है, वर्टेक्स नहीं है, एज एंड वर्टेक्स नहीं है, 0, दे आर 0, ओके। तो इस तरीके से आपको काउंट करना है। यहाँ पे देखो, द सिलेंडर, द कोन एंड द स्फीयर हैव नो स्ट्रेट एजेस, ये तीनों को भी एजेस नहीं है, ओके, दे हैव नो एजेस, सो ये भी एजेस नहीं है। व्हाट इज द केस ऑफ अ कोन, इज इट अ सर्कल, कोन जो है, ये कोन जो है वो सर्कल है क्या, नहीं, नीचे सर्कल है लेकिन ऊपर जो है वो उसका एक पॉइंट आता है। सो द सिलेंडर हैज़ 2 बेस, सिलेंडर में बेस कितने हैं, ये ऊपर का और नीचे का 2 ही बेस है, ये तीसरा बेस नहीं है। देन व्हाट शेप्स आर दे, ऑफ कोर्स द स्फीयर हैज़ नो फ्लैट फेस, उसको भी फ्लैट फेस नहीं है, तो ये भी फेस नहीं है। सो इसमें क्या है, नो फ्लैट फेस, थिंक अबाउट इट। सो अभी इसमें जो है ये एक्सरसाइज जो दिया है, do this. A cuboid looks like a rectangular box. It has 6 faces. Each face has 4 edges. Each face has 4 corners called the vertices. यानी उसका डिस्क्रिप्शन दिया है। वैसे इसका भी लिखना है, क्यूब का भी सेम होता है। इट हैज़, अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं फेसेस 1, 2, 3, 4, 5, 6 फेसेस है। देन ईच फेस हैज़ एज कितने, ये एक है तो उसमें एजेस कितने 4 है, तो 4 एजेस है तो कितना हो गया 4 + 4 8, यहाँ पे 4 लिखने हैं, ओके। तो ईच फेस हैज़ हाउ मेनी वर्टाइसेस, ईच फेस पूछा है तो एक फेस में 4 एज है और 4 वर्टाइसेस है, तो ये क्वेश्चन क्या है, पूरे नहीं पूछे हैं। देन ट्रायंगुलर पिरामिड, नाउ इसमें देखो ट्रायंगुलर पिरामिड में फेसेस, एजेस, कॉर्नर सभी पूछा है। इट इज़ नोन एज अ टेट्राहेड्रॉन, उसे ही बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन और प्रिज्म। सो उसमें फेसेस कितने हैं 1, 2, 3 एंड 4 फेसेस आते हैं। एजेस कितने हैं 1, 2, 3, ये 1, 2, 3, 1, 2, 3 एंड 4, ओके। सो एजेस कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एजेस है। कॉर्नर्स कितने हैं 1, 2, 3 एंड दिस इज 4 कॉर्नर्स। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। अभी इसमें बोला है मैच द फॉलोइंग, ओके, मैच द फॉलोइंग। कोन शेप कौन सा है, दिस इज अ कोन शेप। देन स्फीयर कौन सा है, ये सिलेंडर कौन सा है, दिस इज सिलेंडर। क्यूबॉइड कौन सा है, दिस इज क्यूबॉइड। एंड पिरामिड कौन सा है, दिस इज अ पिरामिड, ओके। So have you got this, the different shapes? Give 2 new examples of each shape. यही इसका एक एग्जाम्पल आपको देना है कि कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है। सो व्हाट शेप इज योर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, यानी ये तुम्हारा अगर कंपास बॉक्स देखा तो ये किसके है, कैसा है, दिस इज अ क्यूबॉइड शेप, ओके। तो वहाँ पे लिखना है क्यूबॉइड, दिस इज अ क्यूबॉइड शेप। नेक्स्ट जो है ब्रिक भी क्या होती है, क्यूबॉइड होती है। नेक्स्ट मैच बॉक्स होता है, वो भी क्यूबॉइड होता है। देन स्वीट लड्डू जो है वो स्फीयर शेप होता है। देन अ रोड रोलर जो होता है वो सिलेंडर शेप होता है, ओके। सो दिस आर द एग्जाम्पल्स। सो दिस इज अबाउट द 5.9। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर पोर्शन ऑफ द फर्स्ट सेमिस्टर। ये जो है व्हाट वी डिस्कस, ये पढ़ो, इसमें से फिल इन द ब्लैंक्स, या ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक लेसन के नीचे व्हाट वी हैव अंडरस्टूड दिया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये भी एक बार आप ये करो, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया होता है, सो गो थ्रू दैट। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर चैप्टर, बाय।